السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو اپنے چینل ایزی ٹو لرن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو صاف لکھنے میں، خوبصورت لکھنے میں مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو آج ہم ان کے لیے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہم ان کو خوش خطی کا آسان طریقہ بتائیں گے، بلکہ صاف لکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ آج ہم ان کو کیلی گرافی سکھانے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ صاف لکھنا سکھائیں گے، اور کچھ طریقے بتائیں گے کہ وہ اپنی لکھائی بہتر کر سکیں۔ اور یہ ویڈیو اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کو ٹیچرز کی طرف سے بھی وارن کیا جاتا ہے کہ اپنی لکھائی کو بہتر کریں، خوش خط لکھیں۔ تو آج کی امید ہے کہ آج کی ویڈیو اگر آپ پوری دیکھ لیں گے تو اس میں آپ کو لکھائی کی بہت سی باریکیوں کا پتہ چل جائے گا، اور آپ ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اینڈ تک دیکھیں، تاکہ آپ کوئی بھی پوائنٹ اس میں مس نہ کریں، اور جو چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں آپ ان کو فالو کر سکیں۔ تو چلیں سب سے پہلے دیکھیں ہم الف دیکھیں کیسے لکھتے ہیں۔ الف تھوڑا سا اوپر سے بھی خمدار ہوگا اور نیچے سے بھی۔ اس کے لیے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ویورز کے ہم نے انگلش کی 4 لائنوں والی کاپی لی ہے۔ پہلے جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ انگلش کی 4 لائنوں والی کاپی لیں، اور کاپی بھی جو ہے وہ ایکسٹرا براڈ لائن، آپ جس شاپ کیپر سے لیں گے اس کو کہیں کہ ایکسٹرا براڈ لائنز انگلش والی کاپی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ہم ایزیلی پھر اس پہ لکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں الف جو ہے اوپر سے بھی تھوڑا سا اس کا خم ہے، اور نیچے سے بھی۔ ایک دفعہ پھر دیکھیں آپ، ابھی ہم آپ کو پوائنٹر کے ساتھ لکھنا سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ یہ پوائنٹر کے ساتھ لکھنا سیکھ جائیں گے، اپنی لکھائی بہتر کر لیں گے، تو اس کے بعد ہم جو کٹا ہوا مارکر ہوتا ہے 608 یا 606، اس کے ساتھ بھی آپ کو لکھنا سکھائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو جس کو تھوڑا موٹا مارکر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو لکھنا سکھائیں گے، اور اس کے بعد جب آپ مزید پریکٹس کر لیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو برش سے بھی لکھنا سکھائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں فالو کرتے رہیں۔ اچھا بے دیکھیں، یہاں سے آپ نے بے کا سٹارٹ لینا ہے۔ اب بے دیکھیں، اب یہ دیکھیں بے تھوڑی لائن سے اٹھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں سٹارٹ میں بھی اٹھی ہوئی ہے اور آخر سے بھی اٹھی ہوئی ہے۔ دوبارہ دیکھیں بے کو، اب یہ دیکھیں کہ یہ سٹارٹ سے بھی لائن سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے اور آخر سے بھی۔ دوبارہ دیکھیں بے کو، سٹارٹ سے بھی اب دیکھیں یہ جگہ خالی ہے، اور اینڈ سے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا الف اور بے ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں جیم، یہ دیکھیں جیم ادھر سے نوکدار ہوگا اور ادھر سے
गोलाई में हम इसको नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, दोबारा देखें इसको। ठीक है, अब इस तरह से ये जीम होगी। फिर ये देखें दाल, दाल दरमियान वाली 2 लाइनों पे हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे और ये पेन को इस तरह से छोड़ देंगे। देखें, स्टार्ट करेंगे, इस तरह से पेन को छोड़ देंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से पेन को छोड़ देंगे। ये दाल होगी। अब रे देखें, रे की फैमिली, यूँ स्टार्ट किया, फिर पेन को यूँ स्लिप करके जैसे छोड़ देना। ये देखें कितना आराम से लिखा जा रहा है रे। इसी तरह से रे की पूरी फैमिली इसी तरह से लिखी जाएगी। रे जे ये सारे इसी तरह से फिर लिखे जाएंगे। अब देखें सीन, देखें सीन के देखें ये 3 दंदाने जो है हम बनाएंगे और इस तरह से। ये बाज़ लोग सीन इस तरह से लिखते हैं, यूँ 3 दंदाने बनाए और यूँ, इस तरह से नहीं, आपने इस तरह से लिखना है। ये सीन की शेप यूँ है। ठीक है, दोबारा देखें। इस तरह से। ठीक है, ये सीन शीन, फिर ये सारी सीन की जो फैमिली है वो इसी तरह से हम लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद स्वाद देखें। स्वाद हो गया। ये देखें, उसके बाद स्वाद का भी सीन की तरह ये इस तरह से आएगा, सीधा नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद तोएं देखें आप, ये अलिफ इसी तरह से हमदार लेकर आएंगे। तोएं, ठीक है, और इसके बाद अब आइन देखें। थोड़ा साइज छोटा रख लें प्रैक्टिस के बाद। आइन की ये चीज़ जो है ये प्रॉपर ऐसे गुलाई में आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह आइन गाइन, आइन और गाइन फिर इसी तरह से लिखा जाएगा। फे देखें, फे का ये फिर देखें सिरा लाइन से हटा हुआ है। ठीक है, फिर अब काफ देखें, काफ भी इसी तरह से लिखा जाएगा, फे से थोड़ा मिलता जुलता है। ये देखें, ये इसका फे का सिरा जो है फे की तरह कुछ बनता है। ये देखें,
काफ। इसके बाद लाम देखें, लाम पहले आप अलिफ लिखोगे, इस तरह मैंने आपको सिखाई है, ये अलिफ, और इधर से फिर नून गुन्ना की गुलाई लेकर आ पाओगे। इसके लिए पहले आप अलिफ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये लाम हो गया। इसके बाद देखें मीम, स्टूडेंट्स मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये कैलीग्राफी नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए जो साफ लिखना चाहते हैं उनके लिए लिखने का तरीका है कि वो किस तरह से अपनी लिखाई को साफ़ कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत इसमें कैलीग्राफी का भी एलिमेंट शामिल है, लेकिन कैलीग्राफी थोड़ी सी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाती है, इसलिए अभी हम उन्हें कैलीग्राफी नहीं सिखा रहे। जब वो अपनी लिखाई को थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे तो फिर हम उन्हें कैलीग्राफी की तरफ लेकर जाएंगे। देखें नून भी इसी तरह से, नून की गुलाई आप लोग देखें। और व्यूअर्स, अगर आप लोग अपनी लिखाई बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टिप ये है कि आपने अपने लिखाई में जो नून गुन्ने हैं उनको बेहतर करना है, उनकी गुलाई बेहतर करनी है। इससे आप अपनी लिखाई में वाज़ेह फ़र्क जो है वो महसूस करेंगे। अब वाव देखें, इधर से आपने स्टार्ट करना है और लाइन के करीब ला कर छोड़ देना है। अब हे देखें, यूँ भी गोल आप लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमज़ा, ये पहले आपने नोट करना है कि कितनी लाइनों में कौन सी चीज़ आ रही है। हमज़ा आप छोटी ये देखें, छोटी ये देखें, छोटी ये थोड़ा सा इसका पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ये ऊपर से ऐसे लेकर आएंगे, इसका थोड़ा सा पेट बाहर निकालेंगे और फिर गुलाई में लेकर जाएंगे। अगर आप छोटी ये भी अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएंगे तो इससे भी लिखाई में बहुत खूबसूरती आती है। आप बड़ी ये देखें, ये पीछे से उठी हुई है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, पीछे से उठी हुई है। तो ये जो आज मैंने आपको कुछ राइटिंग स्किल्स सिखाई हैं, तो स्टूडेंट्स इनको आप गौर से देखें और इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अभी हम इसके कुछ और एपिसोड्स करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और इसको आप पसंद करेंगे। तो व्यूअर्स, आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोग देख सकें। शुक्रिया।